ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالی اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا۔ فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں؟ فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کلوا کنٹلا چندر شیکھر راؤ نے دورہ کرتے ہوئے یادادری میں جدید تعمیر کردہ کلیکٹریٹ کا افتتاح عمل میں لاتے ہوئے دیگر ترقیاتی کاموں کا افتتاح عمل میں لایا۔ آسی درگاہ بڑا پہاڑ حضرت سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شریف کا آغاز، زائرین نے کی شرکت۔ متحدہ ضلع نظام آباد ایم ایل سی کے کویتا نے میڈا رام ساما کا سارکار جاترا پر مبنی ڈاکیومنٹری کی اجرائی عمل میں لائی۔ فوٹو اسٹوڈیو کی سرقے میں ملوث سارقوں کو تحویل میں لینے کے علاوہ منصوبہ بندی کے تحت بھولے بھالے عوام کو لوٹنے والوں کو تحویل میں لینے کا کمشنر آف پولیس کیا نگراجو کا میڈیا سے خطاب۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آسی درگاہ بڑا پہاڑ حضرت سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شریف کا آغاز، زائرین کی شرکت۔ نظام آباد ضلع کی ورنی منڈل جلال پور میں واقع درگاہ بڑا پہاڑ حضرت سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شریف کا آج بروز ہفتہ سندل مبارک کا آغاز ہوا ہے اور 13 فروری یعنی کہ کل محفل چراغاں بعد نماز مغرب و تام کے بعد قوالی کا اہتمام کیا جائے گا۔ ہر سال درگاہ بڑا پہاڑ سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ عرس شریف میں سینکڑوں ہزاروں زائرین کی شرکت یقینی ہے۔ 14 فروری کو عرس شریف کا اختتام عمل میں آئے گا۔ بعد نماز فجر تلاوت قرآن مجید، فاتح خوانی اور تقسیم تبرکات کیا جائے گا۔ چیف منسٹر KCR نے دورہ کرتے ہوئے یادادری بھونگری ضلع میں جدید تعمیر کردہ کلیکٹریٹ کا افتتاح عمل میں لایا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کلوا کنٹلا چندر شیکھر راؤ نے ضلع یادادری بھونگری کا دورہ کرنے کے دوران پہلے مرحلے کے طور پر ریاست تلنگانہ سمیتی دفتر کا افتتاح عمل میں لایا اور اس سے قبل CM KCR نے دفتر کے احاطے میں واقع تلنگانہ تلی مجسمے پر پھول مالائیں پہناتے ہوئے TRS پارٹی سے وابستہ جھنڈے کی رسم اجرائی عمل میں لائی گئی اور اسی طرح سے ضلع کے مقام پر جدید تعمیر کردہ کلیکٹریٹ کا افتتاح عمل میں لانے کے علاوہ یادادری میں VIP کے لیے تعمیر کردہ پریزیڈینشل سوٹ ولا کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ CM KCR کی کامیاب ترین قیادت میں روب عمل میں لائے جانے والی اسکیمات سے متاثر ہو کر عالمون حلقے کے دیگر موضوعات سے وابستہ قائدین نے ضلعی TRS صدر PUC کمیٹی چیئرمین عالمون MLA جیون ریڈی کے ہاتھوں TRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ عالمون حلقے کے دیگر موضوعات سے تعلق رکھنے والے قائدین نے تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد چیف منسٹر KCR کی کامیاب ترین قیادت میں روب عمل میں لائے جانے والے منفرد اسکیمات سے متاثر ہو کر آج ضلعی TRS صدر PUC کمیٹی چیئرمین عالمون MLA جیون ریڈی کے ہاتھوں TRS پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کی بنا پر MLA جیون ریڈی نے TRS پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر پرزور استقبال کیا۔ روشنی ٹی وی صحافی پر حملہ پڑا، لینڈ گرابرز پر بھاری، مختلف دفعات کے تحت محکمہ پولیس نے کیا مقدمہ درج۔
روشنی ٹی وی صحافی شیخ عمران پر گزشتہ 2 دن قبل لینڈ گریبرز کی جانب سے حملہ کیے جانے پر شہر کے 6 ٹاؤن پولیس اسٹیشن حدود میں شکایت درج کروائی گئی تھی، جس پر محکمہ پولیس کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے، جس میں 341 اور 323 IPC کے تحت مقدمات درج کرتے ہوئے محکمہ پولیس نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا۔ اس مہم میں پریس کلب نظام آباد اور اردو صحافیوں کی جانب سے تعاون کرتے ہوئے صحافی برادری پر اس طرح کے حملے کو ناقابل برداشت قرار دیا گیا، جس پر محکمہ پولیس نے بھی بروقت خدمات انجام دیتے ہوئے ACP سرینیواس و CP ناگراجو نے بھی بروقت کارروائی کرتے ہوئے مقدمات درج کیا۔ اسپائس بورڈ کے زیر نگرانی میں تلنگانہ میں بائرز و سیلرز کے لیے میٹنگ کا انعقاد عمل میں لانے کو MP DRV نے قابل مبارکباد قرار دیا۔ اسپائس بورڈ کی زیر نگرانی میں منعقدہ بائرز سیلرز کی میٹنگ میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر نظام آباد رکن پارلیمنٹ دھرماپوری اروند نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ اسپائس بورڈ کے زیر نگرانی میں تلنگانہ میں بائرز و سیلرز کے لیے اجلاس کا انعقاد عمل میں لانے کو کافی خوشائن بات قرار دیتے ہوئے قابل مبارکباد قرار دیا۔ TSWCDC چیئرپرسن اکولا للیتا نے دورہ کرتے ہوئے ورنی منڈل کے سری نگر میں واقع کمپیوٹر امبرائڈنگ ورک کا کیا مشاہدہ۔ TSWCDC چیئرپرسن اکولا للیتا نے دورہ کرتے ہوئے ورنی منڈل کے سری نگر میں کمپیوٹر امبرائڈنگ ورک سے متعلقہ مقامی خواتین سے مکمل ترین تفصیلات حاصل کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے خواتین کی ترقی کے لیے منفرد اسکیمات کو روب عمل میں لانے کے علاوہ خواتین کو تمام طرح کی سہولتیں فراہم کرنے کا تیقن دیا۔ ہر ایک فرد اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہوئے خشک و گیلا کچرے کو میونسپل وین کے حوالے کرنے کا آرمور میونسپل چیئرمین پنڈت ونیتا پون نے کیا خطاب۔ آرمور میونسپل چیئرمین پنڈت ونیتا پون سابقہ چیئرمین سواتی سنگھ ببلو کے زیر نگرانی میں شہر کے 31 وارڈ میں سوچھ سرویکشن پروگرام کے تحت ریالی کا انعقاد عمل میں لا کر مقامی عوام کو افزان صحت کے متعلق شعور بیداری عمل میں لاتے ہوئے خشک و گیلا کچرے کو علیحدہ کر کے میونسپل وین کے حوالے کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں مانیٹری انسپکٹر مہیش، مہیلا تنظیم سے وابستہ ممبران، مقامی عوام و دیگر نے شرکت کی۔ شہر کے ونائک نگر میں واقع رکمنی چیمبر میں موجود کاکتیہ سینڈ باکس دیش پانڈے فاؤنڈیشن دفتر میں اوریٹیشن پروگرام کا کامیاب انعقاد عمل میں لایا گیا۔ شہر کے ونائک نگر میں واقع رکمنی چیمبر میں موجود کاکتیہ سینڈ باکس دیش پانڈے فاؤنڈیشن دفتر میں منعقدہ اورینٹیشن پروگرام میں پروگرام مینیجر ومشی کرشنا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر واسو، CEO سنجے نے شرکت کرتے ہوئے مختلف ہدایات جاری کرتے ہوئے نظام آباد IT اسٹارٹ اپ، اسکیننگ، مائکرو و دیگر کے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ On behalf of TiE Hyderabad, we are here to kind of get to know all of you. There are some very interesting programs that TiE does. One of them is TiE Young Entrepreneurs. Both my children have actually gone through that program in Hyderabad, and I can see the change in their confidence levels, right? Thinking about a business opportunity, thinking about something to change in the world. Come up with that idea, put that in the paper, see if you can actually take the next step, and then compete with other students. ریاستی حکومت کی جانب سے تلنگانہ کے فنکاروں کو ہر ممکنہ طور پر مدد فراہم کرنے کا MLC کے کویتا نے کیا اظہار۔ متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا کے حیدرآباد میں واقع رہائش گاہ میں میڈرام سامکا سارکا جاترا میں ڈاکومنٹری کی اجرائی عمل میں لائی گئی اور اس موقع پر پدم شری ایوارڈ حاصل کرنے والے ساکینی رام چندریا کو شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لاتے ہوئے ان کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کو قابل ستائش قرار دیتے ہوئے بتایا کہ سامکا سارکا جاترا میں راما چندریا کو خصوصی مقام حاصل ہونے کا اظہار کرتے ہوئے اس موقع پر انہوں نے سامکا سارکا جاترا پر خصوصی ڈاکومنٹری بنانے والے فلم میکر بالاجی داسری کو مبارکباد پیش کی اور حکومت کی جانب سے فنکاروں کو ہر ممکنہ طور پر مدد فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر خانہ خواہ وابستگان محمدی کی جانب سے بلا لحاظ مذہب و ملت غذائی اشیاء کی عوام میں تقسیم۔ خانہ خواہ وابستگان محمدی عادل آباد شاخ نظام آباد کی جانب سے شہر کے RR چوراستے پر عرس حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر گزشتہ 2 روز سے عوام میں غذائی اشیاء کی تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اسی طرز پر گزشتہ روز عوام میں پانی کی تقسیم کی گئی تھی۔ آج اس خانہ خواہ کے ذمہ داران کی جانب سے عوام میں پانی و جوس کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے بلا لحاظ مذہب و ملت جوس کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے امن کا پیغام دیا گیا اور حضرت کی تاریخ سے عوام کو واقف کروایا گیا۔ چائے کا مفت انتظام رکھے ہیں 2 بجے سے لے کے 7 بجے تک۔ بس ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو
उनके खादिमों में जो है सो कबूल कर ले और हमको ख्वाजा साहब के बताए हुए रास्ते पर हमको चलने की तौफीक अता फरमाए। और मैं तमाम दुनिया के तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ जो रजब के महीने में ख्वाजान साहब सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आमद हुई। इस मौके पर हम सब आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। खानकाह मोहम्मदी निज़ामाबाद की तरफ से वाबस्ता गायन हम खानकाह मोहम्मदी आदिलाबाद से है, जो हमारे पीर व मुर्शिद हमको हर वक्त ख्वाजा खाजगान रहमतुल्लाह अलैह के मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से हमेशा हमको जो है सो बताते रहते, उनके तालीमात हमको जो है सो देते रहते हैं और इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बराबर अमल करेंगे इंशाल्लाह। और आगे भी जो है सो हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, इस तरीके से शरबत पिलाने का प्रोग्राम है, लंगर का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह हम बराबर जो है सो हम आगे करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है कि अल्लाह ताला हमको इस काम में हमको कबूल करे और हमको ख्वाजा खाजगान साहब मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खादिमों में हमको जगह अता फरमाए। खुदा हाफिज़ रहमतुल्लाहि बरकातहू। यहाँ पर जो चाय का नज़म करे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजय रहमतुल्लाह अलैह और हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली 90 लाख लोगों को इस्लाम में दाखिल करें, उनकी निस्बत से यहाँ पे फ्री चाय का नज़म किया गया है। और कल नेहरू पार्क पे शरबत का भी निज़ाम होगा। और ख्वाजा साहब की तालीमात यही थे कि सारे मखलूक को खुश रखें, जो ज़मीन वालों को खुश रखता है तो आसमान वाले भी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ में खिदमात अंजाम देने वाले म्यूनिसिपल वर्कर्स को 15 लाख रुपए मालियती रकम पर मबनी दीगर जरूरी अशिया की मियां नीतू किरण के हाथों फ्राहमी अमल में लाई गई। निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर ने मजलिस बल्दी में खिदमात अंजाम देने वाले तकरीबन 276 म्यूनिसिपल वर्कर्स को 15 लाख रुपए मालियती रकम पर मबनी 3 साड़ियाँ, 3 टॉवल्स और 2 जोड़ों पर मुनसीब 2 क्लॉथ पीस, 3 टॉवल्स जो कि 2 साल पर मबनी दीगर जरूरी अशिया की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులందరికీ మహిళలకు పురుషులకి ఈరోజు బట్టలు ఇవ్వడం పంపిణీ చేయడం జరిగింది। మరి గత 2 సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని కారణాల వల్ల ఇవ్వలేకపోయాం। అయితే అవన్నీ కూడా కలిపి ఈసారి మరి వాళ్ళందరికీ కూడా బట్టల పంపిణీ చేయడం జరిగింది। స్త్రీలకైతే 6 చీరలు, 6 టవళ్ళు, అలాగే పురుషులకైతే వారికి సంబంధించి 2 జతల బట్టలు, 6 టవల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। सीएम केसीआर का फलाही स्कीमात के जरिए गरीबों की मदद करना मुनफरिद इक़दाम। एमएलए जी विठल रेड्डी टीआरएस हुकूमत की खिदमत पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल। टाउन सदर फारूक सिद्दीकी। एमएलए विठल रेड्डी ने आज भैंसा मुस्तखर के 187 मुस्तखिन में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के तहत मंजूर शुदा चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इसी मौके पर इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत हमेशा चाहती कि रियासत की गरीब अवाम को इनका हक हासिल हो। इसी जिम्मन में शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ करवाया गया जो कामयाबी के साथ जारी है। भैंसा टाउन के सदर फारूक सिद्दीकी ने कहा कि सीएम केसीआर की कामयाब स्कीमात सारे हिंदुस्तान में नुमाया मुकाम रखती है और कहा कि रियासत में खुशहाली व अमन सिर्फ केसीआर हुकूमत से ही मुमकिन है। इस मौके पर सैयद आसिफ एएमसी नायब सदर, मोहम्मद तामिर मजलिसी काउंसलर, कृष्णा एएमसी चेयरमैन, सैयद आला हाशमी के अलावा टीआरएस व एमआईएम के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी।
जनवरी 2022 में रिहायशी जायदादों की फरोख्त में कमी, रजिस्ट्रेशन 27% की गिरावट, रियल एस्टेट शोबे की बहाली के लिए 2 माह दरकार। रियल एस्टेट शोबे के लिए जनवरी 2022 अच्छा साबित नहीं हुआ क्योंकि शहर में जनवरी 2022 के दौरान रिहायशी जायदादों की फरोख्त में 27% गिरावट रिकॉर्ड की गई और कहा जा रहा है कि दोबारा रियल एस्टेट शोबे में बहाली के लिए 2 माह दरकार होंगे। कोरोना की तीसरी लहर और तेलंगाना में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त इक़दाम न होने के बावजूद रियल एस्टेट शोबे की हालत अबतर हुई, लेकिन इसमें बतदरीज बेहतरी के आसार भी है। नाइट फ्रैंक इंडिया रियल एस्टेट कंसल्टेंट की रिपोर्ट में कहा गया कि साल गुज़िश्ता माह जनवरी के दौरान रजिस्ट्रेशन और जारी साल जनवरी के रजिस्ट्रेशन का अगर तकाबुल किया जाए तो कोरोना की तीसरी लहर का असर शहर के रियल एस्टेट पर नजर आ रहा है और रजिस्ट्रेशन की तादाद में गिरावट 27% रही है। जनवरी 2022 के दौरान जुमला 5,568 जायदादों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। कंपनी के सदस्य ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के मनफी असरात रियल एस्टेट शोबे पर देखे गए और जारिया सामाही के दौरान ये मनफी असरात रहेंगे, लेकिन शहर में जायदादों की मुंतकली में बेहतरी के इम्कानात। बताया जाता है कि हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी के अलावा रंगारेड्डी में मजमू एतबार से जनवरी 2022 के दौरान 2,695 करोड़ की जायदादों के रजिस्ट्रेशन हुए और मालियत के एतबार से ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के 8 सरकर्दा शहरों में हैदराबाद का शुमार बरकरार है, जहाँ रियल एस्टेट शोबा बिलखुसूस रिहायशी जायदादों की खरीद का रुझान है। गुज़िश्ता बरस के आखिर में कोरोना की नई किस्म और कोरोना वायरस के खतरात में इजाफे के साथ तीसरी लहर के मुतालिक अवामी खदशात की वजह से रियल एस्टेट शोबे में खरीदारी का रुझान नहीं देखा गया। माहिरीन के मुताबिक जारी माह और आइंदा माह के दौरान रजिस्ट्रेशन की तादाद में इजाफे के साथ रियल एस्टेट की हालत में सुधार के इम्कानात है, लेकिन अगर यही सूरत हाल रही और साल गुज़िश्ता के पहले छमाही से जायदादों की फरोख्त का तकाबुल किया जाता है तो मजमूई तौर पर जायदादों की खरीदी के रुझान में गिरावट का भी खदशा है। 11 से 17 में एसएससी इम्तिहान सुबह 9:30 तक दोपहर 12:45 तक इम्तिहान होगा। शेड्यूल जारी। तेलंगाना में एसएससी इम्तिहान का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। टाइम टेबल के मुताबिक एसएससी, ओएसएससी और वोकेशनल इम्तिहान का 11 मई से आगाज होगा जो 17 मई तक जारी रहेंगे और 18-20 में ओएसएससी और वोकेशनल इम्तिहान होंगे। 11 मई से इम्तिहान के औकात 9:30 सुबह से 12:45 दोपहर तक रहेंगे और तमाम ऑब्जेक्टिव टाइप पर्चों के लिए इम्तिहान के आखिरी 30 मिनट दिए जाएंगे। 11 मई को ग्रुप ए तुलबा के लिए जुबान अव्वल का पर्चा होगा, जबकि कंपोजिट कोर्स तुलबा के लिए जुबान अव्वल का पर्चा अव्वल और दुआम होगा। 12 मई को जुबान दुआम का पर्चा होगा। 13 मई को जुबान सुवम अंग्रेजी का पर्चा होगा। 14 मई को हिसाब का पर्चा होगा। 16 मई को साइंस के 2 पर्चे जात होंगे जिनमें फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस शामिल है। 17 मई को सोशल स्टडीज समाजी उलूम का पर्चा मुनक़िद होगा। डायरेक्टर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी की तफसीलात के मुताबिक 18 मई को ओएसएससी का पर्चा अव्वल बराए संस्कृत व अरबी जुबान के तुलबा के लिए मुनक़िद किया जाएगा, जबकि 19 मई को पर्चा दुआम होगा। 20 मई को वोकेशनल कोर्स के तुलबा के लिए पर्चा मुनक़िद होगा जो कि 9:30 सुबह से 11:30 दोपहर तक जारी रहेगा। एलामी के मुताबिक एसएससी, ओएसएससी और वोकेशनल कोर्स के लिए बगैर किसी जुर्माने के फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 14 फरवरी है, जबकि 24 फरवरी तक 50 देरीना फीस के साथ और 200 रुपए देरीना के साथ 4 मार्च तक फीस जमा करवाई जा सकती है। 14 मार्च तक 500 रुपए देरीना के साथ फीस जमा करवाई जा सकती है। भोले भाले अवाम को मनसूबाबंदी के तहत लूटने वालों को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने मीडिया के जरिए किया इंकशाफ। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने सीपी दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 7 तारीख को रात के ठीक 8 बजे ऑटो के लिए इंतजार करने वाले जे श्रीनिवास नामी शख्स के पास 20,000 रुपए रखने की इत्तला हासिल करके A12 A3 पहले से ही मनसूबा बंदी के तहत A4 सुरेश को ऑटो किराए से लेकर इनके साथ मौजूद खवातीन को ऑटो के पिछले हिस्से में बिठाकर और जे श्रीनिवास नामी शख्स को बनावटी बातों के जरिए ऑटो में बिठाकर पहले से की गई मनसूबाबंदी के तहत ऑटो को राधा कृष्णा टाकिस के अगबी हिस्से में रोककर A12 A3 ने जान से मारने की धमकी देकर जी श्रीनिवास नामे शख्स के पास से 20,000 रुपए जबरदस्ती से छीनकर बजरिए ऑटो कंटेश्वर पर पहुंचकर A12 A3 ने ऑटो ड्राइवर 2,000 रुपए माली रकम लेकर रफरार इख्तियार करने की हासिल करदा इत्तला पर निजामाबाद टाउन CI कृष्णा, 3 टाउन IPS SI साइनाथ, 3 टाउन के दीगर पुलिस मुलाजमीन फौरी तौर पर पहुंचते हुए हिरासत में लेकर 20,000 रुपए रकम को जब्त करते हुए 2 सेल फोन व दीगर को हिरासत में ले लिया।
మహిళలు మన నిజామాబాద్కు చెందిన ముగ్గురు మహిళలు సాదుల సాలమ్మ అలియాస్ సుజాత, డొక్క సుగుణ, తర్వాత డొక్క చంద్రకళ, ఈ ముగ్గురు కలిసి బస్ స్టాండ్ వద్ద వచ్చే ఒక సింగిల్ యువకుడు ఎవరైనా టార్గెట్గా చేసుకొని అతన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లాయిడ్ అంటే ఏమంటాం మనం రెచ్చగొట్టి తన కొత్త వెహికల్ కాస్టులతో ఇన్వైట్ చేసి హనీ ట్రాప్ అంటారు దాన్ని, హనీ ట్రాప్ చేసి ఆటోలో ముందుగానే మాట్లాడుకున్న ఆటోని పెట్టి ఎక్కినాక ఐసోలేషన్ ప్లేస్లో అంటే నిర్మాషం అన్న ప్లేస్ తీసుకుపోయి వారిని బెదిరించి కొట్టి వీలైతే మా పైన అగాత్యం చేసిన కంప్లైంట్ ఇస్తామని చెప్పి సందర్భాలు చేసి వాళ్ళతో ఉన్న చైన్, గోల్డ్ చైన్, క్యాష్ కూడా లాక్కొని వెళ్ళాము. వీళ్ళ యొక్క ఎమో అంటే ఎమో వాళ్ళ యొక్క నిర్దిష్టమైన ప్రమాణం కాబట్టి మనకు ఇప్పటివరకు ఎవరు కంప్లైంట్ చేయలేదు. ఇలాంటి ఎవరైనా బాధితులు ఉంటే తప్పనిసరిగా వచ్చి చేయాలి. फोटो स्टूडियो के सरखे में मुलविस सारख को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू ने मीडिया के जरिए किया इजहार। जिले कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू ने सीपी दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि शहर के 3 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ई किनाल कट्टे के साकिन रवि नामी शख्स के फोटो स्टूडियो की खुफर शिकनी करते हुए एक कैमरा, लैपटॉप का सरखा होने के मुतालिक हासिल करदा दरख्वास्त की बिना पर केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज सरखे में मुलविस श्याम लिम्बाद्री को तहवील में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें मुलजिम ने बताया कि मैकेनिक के तौर पर काम करते हुए कभी कभार कैटरिंग का काम भी करने के साथ साथ मौज मस्ती और आसानी के साथ रुपया कमाने के मकसद के तहत सरखा करते हुए एक दिन कैटरिंग का काम मुकम्मल करके आने के दौरान किनाल कट्टे में मौजूद रवि नामी शख्स के फोटो स्टूडियो की खुफर शिकनी करते हुए कैमरा और लैपटॉप का सरखा करके फरोख्त करने के दौरान पुलिस मुलाजमिन ने इनके कब्जे से कैमरा, एक लैपटॉप को जब्त करके सारिखों को रिमांड पर मुंतकिल किया। ఈరోజు ఒక నేరస్తుని పట్టుకుంటే అతని దగ్గర నుండి D90 డిజిటల్ కెమెరా, లెనోవో ల్యాప్టాప్ వర్త్ ఆఫ్ నియర్లీ ఒక 2 lakhs వర్త్ మనం రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. ఇతను కట్ట శ్యామ్ లింబాద్రి, ఇతను కోటగల్లి నివాసి, మెకానిక్ వృత్తి చేసేది మాత్రం ఈ పార్ట్ టైంలో షెల్టర్ లావట్టి దొంగతనాలు చేస్తున్నాడు. సో ఇతన్ని కూడా ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి ఇతని దగ్గర నుండి ఇంటాక్ట్గా D90 డిజిటల్ కెమెరా అండ్ లెనోవో ల్యాప్టాప్ రెండింటిని కూడా స్వాధీనం పరుచుకున్నాం. అతన్ని ఈరోజు రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లనే మా పోలీస్ ఆఫీసర్లకు మంచి గుడ్ వర్క్ చేసినందుకు వారికి सनती नुमाइश की दोबारा कुशादगी की रहनुमा नुमाइश सोसाइटी 20 से 25 फरवरी दोबारा आगाज के लिए कोशा। हैदराबाद का मशहूर सालाना तिजारती मेला नुमाइश जो 6 जनवरी को इफ्तिताह के एक दिन बाद कोविड के मामलात में इजाफे की वजह से अचानक बंद कर दिया गया था। इस माह के आखिर में दोबारा खोले जाने का इम्कान है। सेहत के हकाम के ऐलान के साथ कि रियासत में वबाई मर्ज का तीसरा मरहला खत्म हो गया है। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी सालाना तकरीब के मुंतजिमीन 20 से 25 फरवरी तक नुमाइश को दोबारा शुरू करने का मंसूबा बना रहे हैं। चूँकि रियासत में कोविड पाबंदियां हटा दी गई है, मुंतजिमीन ने पुलिस और दीगर हकाम से 1 माह तक मेले के इनेकाद की इजाज़त देने की दरख्वास्त की है। इस तजवीज़ पर बहस के लिए बुध को सोसाइटी की एक मीटिंग हुई, जिसमें कुछ सरकारी अफसरान ने शिरकत की। सोसाइटी के एक रुकन के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों ने मुस्बित जवाब दिया है। कहा जाता है कि मुंतजिमीन पुलिस से हतमी मंजूरी का इंतजार करें। तमाम मुतालिका महकमों से इजाज़त मिलने के बाद सोसाइटी ताजरों को दोबारा अपने स्टॉल लगाने की दावत देगी। 1 जनवरी से शुरू होने वाली 45 रोजा नुमाइश को अगले ही दिन बंद कर दिया गया, क्योंकि हकाम ने ऐलान किया कि वो इसे 10 जनवरी तक मुअत्तल कर रहे हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव ने दौरा करते हुए यादाद्री में जदीद तामीर करदा कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह अमल में लाते हुए दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। आसी दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद सादुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ का आगाज, ज़ायरीन ने की शिरकत।
मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने मेडाराम सामा साराकार यात्रा पर मबनी डॉक्यूमेंट्री की जाई अमल में लाई। फोटो स्टूडियो की सरखे में मुलविस सारिकों को तहवील में लेने के अलावा मनसूबाबंदी के तहत भोले भाले अवाम को लूटने वालों को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियान अगराजू का मीडिया से खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।